Very good evening, everyone. Today we are going to talk about insanity, that is Section 84 of Indian Penal Code. Till yesterday we dealt with infancy, and today we are going to start with insanity. But before going into the provisions of insanity, I would like to share a very interesting story with you. It's in the background of year 1960s. So what happens that there is a justice called Justice Imam. So he was about to become the Chief Justice of India, but he was superseded by a junior judge because it was complained to Pandit Nehru that he is diagnosed with mental infirmity. So what does I mean by mental infirmity? Matlab, he is mentally weak. He is not as much sound-minded as other persons in the court. So he said that it was complained to Pandit Nehru कि सर जस्टिस इमाम उतने समझदार नहीं है और mentally fit नहीं है, उनको हम चीफ जस्टिस नहीं बना सकते. So Pandit Nehru said that Justice Imam is a Muslim man. If we will supersede him, then it will give a very wrong message. So then Pandit Nehru said that okay, call him, let's meet with him. So they met, and Mr. Nehru asked him that kindly write Supreme Court of India on a paper. And interestingly, that justice failed to write Supreme Court of India on paper due to his mental infirmity. So insanity is a we are going to discuss about insanity. So insanity is a very big problem which we will be dealing today. And just for the purpose of showing you the proof of the incident which I told you currently, let me show you, because I have found this story on internet. Oh, just a second. So it goes like, yeah. So in 1960, so P.V. Ganjedkar superseded him, Justice Imam, who was suffering from a mental infirmity. And the story goes like that. He was asked that kindly write Supreme Court of India on paper, and he failed to write Supreme Court of India on paper. So this was the amount of tragic incident that happened, so which I thought I should share with you all. So yeah, this was one of the there was a controversy because they cannot supersede a Muslim judge because it was 1960s. We became independent like 13 years before, so it might give a wrong message. So that was a very big problem for the prime minister, but he was superseded at the end. So yeah, coming back to our provisions. We were talking about insanity. So this was a small story, not completely related to this provision, but it was something which I thought that I should share with you. So coming to section 84. So section 84, when you will read the provision, it says that nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. This reading itself is sufficient to understand all the cases of insanity. It says that nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it. Now, what is the first thing? At the time of doing it. जिस समय वो व्यक्ति वो act कर रहा है, by reasons of unsoundness of mind, means he is, sorry, just a second. Yeah, so it says that at the time of doing it, whenever the person does the act, the commission or omission of the act, he is unsound minded. At that time, when the act is done, he is unsound minded and he does not know the nature of the act, or he does not know that what he is doing is either wrong or contrary to law. ये दो चीजें ही लिखी हुई हैं, और ये दो चीजें क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि उस एक्ट को करने के वक्त वो अनसाउंड माइंडेड पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट. उसको पता ही नहीं उस एक्ट का नेचर क्या है, या फिर उसको ये नहीं पता कि वो एक्ट रॉन्ग या कॉन्ट्ररी टू लॉ है. अब यहाँ एक बात समझने की चीज है कि मैंने आपसे कहा था कि एक्सक्यूज जब आप ये देते हैं कि मुझे लॉ ही नहीं पता, तो आपको डिफेंस नहीं मिलता है. लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम अनसाउंड माइंडेड की बात कर रहे हैं. इसलिए ये चीज लिखा है कि अगर आपको पता ही नहीं कि वो चीज कॉन्ट्ररी टू लॉ है, या फिर वो गलत है, या फिर उस एक्ट का नेचर नहीं पता आपको. अब आप कहेंगे नेचर नहीं पता से क्या मतलब है, दैट ही डज नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट. तो इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा इन दोनों ही बातों को. व्हाट डज आई मीन बाय नेचर ऑफ द एक्ट एंड व्हाट डू आई मीन बाय समथिंग रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ. ये दो बातें लिखी हुई हैं, इन दोनों की हम बात करेंगे. बट पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि अनसाउंड माइंडेड लोगों को के एक्ट्स को ऑफेंस नहीं बोला जाता है. इसका बहुत सिंपल सा रीजन है
कि जो अनसाउंड माइंडेड है, जो मैड है, जो इंसेन है, इंसेन उन्मादी कहते हैं हिंदी में, तो जो इंसेन है, जो इडियट है, जो जो जिसको हो सकता है कि मिर्गी के दौरे में है जिस समय वो एक्ट कर रहा है, तो उसका कोई इंटेंशन नहीं होता उस एक्ट को करने का। तो एक तो वो अनइंटेंशनली है और वो वॉलेंटरली भी नहीं है, क्योंकि इंटेंशन नहीं है तो वॉलेंटरली भी नहीं है। और हमने क्या पढ़ा था, मेंस रिया एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं। सो द पर्सन हु हैज कमिटेड दिस एक्शन लैक द इंटेंशन, तो हम उसको कैसे पनिश कर सकते हैं? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम उसे पनिश कर भी दें तो भी ऐसा तो नहीं है कि उससे हमने प्रॉब्लम दूर कर दी। सपोजिटली इफ समवन इज मैड एंड उसको आदत है लोगों को थप्पड़ मारने का, अगर हम उसे जेल भेज दें तो उसकी आदत सुधर तो जाएगी नहीं। दिस पनिशमेंट कैन नॉट करेक्ट हिम, सो दैट इज वाई वी डू नॉट पनिश insane and we do not call their act as offense. बट एक प्रॉब्लम इसमें भी है, इफ वी विल सब अनसाउंड माइंडेड लोगों को, पागल लोगों को अगर कोर्ट कह दे कि आप कुछ भी करिए, वी आर नॉट गोइंग टू पनिश यू, वट एवर यू विल डू दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज ऑफेंस, देन इट विल अगेन बिकम प्रॉब्लमेटिक। सपोज करिए किसी को आदत है लोगों की मर्डर करने की, अब उसको कोर्ट खुला तो नहीं छोड़ सकती है। कोई लुनेटिक आदमी एकदम मैनियाक बन गया, एकदम पागल हो गया, बीस्ट हो गया, वो अपना टेम्पर खो चुका है, उसे जहां भी आदमी दिखता है वो उसको मारना शुरू कर देता है, तो ऐसे आदमी के लिए कोर्ट क्या करेगी? तो इसके लिए भी प्रोविजन है। सीआरपीसी के सेक्शन 330 कहता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो चाहे तो लुनेटिक असाइलम में भेज सकता है लोगों को, अगर कोई केस ऐसा है जिसमें कोर्ट को लग रहा है, मजिस्ट्रेट को लग रहा है दैट दिस पर्सन इज हैबिचुअल, इसको सोसाइटी में हम रख ही नहीं सकते। एक तो होता है भाई सम कभी कभी इंसैनिटी हो गई, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने अपना मेंटल कंट्रोल लूज कर लिया, आपको अनसाउंड माइंडेड हो गए, होता है कुछ लोगों को 10-10 दिन पे दौरे आते हैं, ठीक है, वो उन्हें सोसाइटी में हम एक पल को रहने दे सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, वो क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं है, वो हमेशा जब देखो ऐसी चीज कर रहा है जो इलीगल है, तो उसके लिए मेंटल असाइलम या लुनेटिक असाइलम्स होते हैं जहां मजिस्ट्रेट जो केस ट्राई कर रहा है वो कह सकता है कि सर इसको आप अंडर 330 ऑफ सीआरपीसी इसको आप क्या करिए, डिटेन कर दीजिए, लुनेटिक असाइलम भेज दीजिए। तो ये प्रोविजन भी है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते हैं, ओपन हैंडेड छोड़ देते हैं। फर्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये पता कैसे चले कि कोई इंसेन है या नहीं है? अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि ये जो दो चीजें मैंने लिखी है, नेचर ऑफ एक्ट उसको नहीं पता है या रॉन्ग या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, इसका क्या मतलब है ये हम आगे केस के थ्रू आपको समझाएंगे। सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति इंसेन है या वो पागल है या अनसाउंड माइंडेड है? देखिए अगर आप प्रोविजन पढ़ेंगे तो प्रोविजन में इंसेन वर्ड नहीं यूज किया गया है, प्रोविजन में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूज किया गया है। तो कैसे पता चलेगा दैट ही इज इंसेन? इस बात को समझने के लिए अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, जैसे वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, काउंटिंग 20 पेंस टेस्ट, गुड एंड एविल टेस्ट, मैकनॉटन टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं। अब देखिए बात यह है कि ये जो टेस्ट हैं वो पुराने टेस्ट हैं, टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं। जो सबसे लेटेस्ट टेस्ट है इसमें मैकनॉटन टेस्ट है जो फॉलो होता है, बट उससे पहले कुछ टेस्ट थे जो अब रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हम एक नजर डाल लेते हैं। एक था वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, जस्टिस एडवर्ड एर्नोल्ड ने दिया था। ये कहते थे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी इतनी खत्म हो गई है कि उसे पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो कैसा है, वो एक्ट क्या है, वो एक इन्फेंट की तरह हो गया, एक छोटे बच्चे की तरह हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो जो चीजें कर रहा है वो उसका नेचर क्या है, उसकी चीज को लेके उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं, इट बिकेम लाइक एन इन्फेंट, उसका माइंड इस तरीके का आ गया, या फिर वो वाइल्ड बीस्ट की तरह हो गया, एकदम जंगली जानवर की तरह हो गया। तो इसको आप वाइल्ड बीस्ट टेस्ट कहते थे, पहले जस्टिस एडवर्ड एर्नोल्ड ने दिया था। फिर उसके बाद काउंटिंग 20 पेंस टेस्ट आया, ये फिट्जरबर्ग ने दिया था। ये जस्टिस कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही अनपढ़ है, जो अकाउंट नहीं कर सकता, जो काउंटिंग नहीं कर सकता, 20 तक भी काउंट नहीं कर सकता, जो ये भी नहीं कह सकता देख कि उसके पापा का नाम क्या है, उसकी मम्मी का नाम क्या है, उसके एज कितनी है, तो इसको हम कहेंगे दैट ही विल बी इंसेन। तो ये अलग अलग टेस्ट पहले टाइम के साथ थे। गुड एंड एविल टेस्ट आया कि जिसको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, उसको हम मैड कहते हैं। इस तरीके की चीजें हुई, बट फाइनली इन 1942-43 मैकनॉटन टेस्ट आया। तो ये मैकनॉटन टेस्ट क्या था इसको समझते हैं। एक मैकनॉटन केस हुआ इन द ईयर 1843। सेंट मार्टिन मिडलेक्स में क्या हुआ, डैनियल मैकनॉटन ने पिस्टल निकाल के एडवर्ड डोरमोंट को शॉट कर दिया। जो उन्हें लगा कि एडवर्ड डोरमोंट जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पेल है, वो रॉबर्ट पेल को समझते हुए किसी और व्यक्ति को मार दिया। 5 दिन बाद डोरमोंट की डेथ हो गई और मैकनॉटन पे मर्डर के चार्जेस लगे। जब ये केस कोर्ट में गया तो मैकनॉटन ने कहा कि सर, जब इनके जो भी अटॉर्नी थे उन्होंने कहा कि सर मैकनॉटन एक डिल्यूजन में था पूरे टाइम,
मैकडॉनल्ड को लगता था कि जो प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पेल है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, वांट टू किल हिम। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर उनको मारना चाहता है। ये एक पर्टिकुलर डिलीजन में था ये बंदा मैकडॉनल्ड। इसको टाइम एंड अगेन ऐसा लगता था, जब ये न्यूज़पेपर बॉय को देखता था, मिल्कमैन को देखता था, जब ये किसी भी आदमी को देखता था तो उसे लगता था कि ये एक एजेंट है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भेजा गया। ये किसी के भी हाथ में गन देखता था तो उसे लगता था कि यह बंदा मुझे शूट कर देगा। तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन द फियर दैट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पेल वांट टू किल हिम। उसको ये डिल्यूजन हो गया था। और जब ये डिल्यूजन क्लाइमैक्स पे पहुंचा तो वो सोचा कि आई विल किल द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और डिल्यूजन के कारण ही डेनियल मैकडॉटन को क्या हुआ, वो जो सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर का, एडवर्ड डोरमंड, उसको प्राइम मिनिस्टर समझ के उसने गोली चला दी। उसने सोचा कि ये प्राइम मिनिस्टर है, बट एक्चुअली में ही वाज द सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड डोरमंड। और एडवर्ड डोरमंड को गोली लग के 5 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब इस केस में उनको इंसैनिटी का डिफेंस मिला बिकॉज ही वॉज इन कॉन्स्टेंट डिल्यूजन। उसे पता ही नहीं था कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उस एक डिल्यूजन में था वो, कि जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है। उसे हमेशा लगता था कि उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन के। तो इसमें उसको इंसैनिटी का डिफेंस दिया गया। डॉक्टर्स ने भी कहा कि सर ही इज मैड, ही इज इन द डिल्यूजन, तो इसको हम गिल्टी नहीं कह सकते क्योंकि इसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। वो कैपेबल ही नहीं इस बात को समझने के लिए कि सही क्या है गलत क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को मारने जा रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये मुझे क्यों मारे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द डिल्यूजन। तो इसीलिए इस केस में टेस्ट रखा गया कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति जिसको इंसैनिटी का डिफेंस चाहिए वो इंसान है या नहीं है। तो ये कहते हैं कि दे लेबर्ड अंडर अ डिफेक्ट ऑफ रीजन। एक रीजनिंग नहीं होनी चाहिए किसी चीज को करने के पीछे। अगर कोई पागल आदमी है तो ऑब्वियसली रीजन नहीं होगा एक काम करने के पीछे। इफ समवन इज इनसेन तो उसकी रीजन लैक करेगा। सपोज करिए दो भाई हैं, एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर इसलिए कर दिया कि प्रॉपर्टी मिल सके, तो देयर इज अ रीजन। बट नॉर्मली आपने किसी को ऐसे ही मार दिया फन के लिए, सो दैट शोज कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है, देयर इज अ डिफेक्ट ऑफ रीजन। उन्होंने कहा दैट शुड बी कॉज्ड बाय अ डिजीज ऑफ माइंड, और वो दिमाग की दिक्कत के कारण। ऐसा नहीं हो कि मूड कर रहा था तो मैंने मार दिया, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, और उसको पता ना हो नेचर एंड क्वालिटी ऑफ हिज एक्ट, कि वो जो कर रहा है उसका नेचर क्या है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उससे क्या अगला व्यक्ति मर जाएगा, और उसे पता भी ना हो कि ये चीज करना प्रोहिबिटेड है। ये सब चीजें उसे समझना है। ये मैग्नॉटन टेस्ट में, मैग्नॉटन केस में, मैग्नॉटन टेस्ट में दिया गया, ये सारी बातें कही गई। अब इसका ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन इंडिया में आया। इंडिया में क्या है, ये दो चीजों में चीजें जो फुलफिल हो जाती है, इनमें से कोई भी एक चीज फुलफिल हो जाती है तो आपको इंसैनिटी का डिफेंस मिल जाता है। क्या, इफ यू आर इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, जो मैं सबसे पहले डेफिनेशन में कहा कि आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, मतलब क्या है। तो आपको एक्ट का नेचर ही नहीं पता। जैसे कि अगर मैं कहूं, एक इलिस्ट्रेशन था कि एक मैडमैन ने एक सोते हुए आदमी का गला काट दिया, और ये सोचते हुए गला काटा कि जब ये सो के उठेगा तो ये अपना गला ढूंढेगा, तो बहुत मजा आएगा एक बिना गले के आदमी को देखते हुए कि वो अपना गला कैसे ढूंढता है। तो उसे पता ही नहीं कि अगर मैंने इसका गला काट दिया तो ही विल डाई एट द स्पॉट। ही इज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। यहाँ पे ये क्या हो गया, जो मैं कह रहा हूँ इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट का मतलब यही है कि आपको पता ही नहीं कि आपके एक्ट का नेचर क्या है। जैसे कि मैंने आपसे इस इलस्ट्रेशन में बताया कि ही कट्स द हेड ऑफ अ मैन स्लीपिंग ऑन रोड बिकॉज इट वुड बी फन टू वॉच हिम सर्चिंग फॉर हिज हेड व्हेन ही इज अवोक। सो इस तरीके के का काम करना जहां आपको नेचर नहीं पता एक्ट का, उसको पता ही नहीं कि अगर मैंने गला काट दिया तो अब वो जगेगा ही नहीं, तो अपना गला कैसे ढूंढेगा, बहुत सिली सी बात है। सो इट शोज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। सेकेंड है बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कहते हैं कि अब इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, या फिर आपको समझ ही नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो लॉ के कॉन्ट्ररी है और वो गलत है, आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल एक केस की थ्रू लेते हैं, शीबो कियोरी केस। इस केस में क्या होता है, इन दिस शीबो कियोरी केस व्हाट हैपेंस दैट एक व्यक्ति है जो कि अपने अंकल का गला काट देता है और तलवार से गले काट के कहता है विक्ट्री टू काली। उसके बाद वो अपने फादर का जो है गला काटने को दौड़ता है और लोगों का भी गले काटने को दौड़ता है। उसको लगता है कि भगवान को सोच के, काली गॉडेस को सोच के कि मैं उनको सर्व कर रहा हूं, इस तरीके का ख्याल उसे आता है। मैं आपको फैक्ट्स दिखाता हूं केस के। दिस इज शिवो कियोरी सेज दैट a young man of weak intellect,
अगर आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ, अ यंग मैन ऑफ वीक इंटेलेक्ट killed his uncle, which he did by hacking him on the head and neck with a sword. The prisoners rushed about brandishing his weapon and shouting victory to Kali. ठीक है, और उसके बाद वो और लोगों को भी मारने को दौड़ा, जिसमें उसके खुद के पापा भी थे। तो इस तरीके की चीजें हुई। उसके बाद इंक्वायरी हुई, केस गया, और कोर्ट ने इसे डिफेंस दिया इस बात का कि नॉर्मल पर्सन विक्ट्री टू काली कहते हुए ऐसा मर्डर नहीं करेगा, ही इज सफरिंग सम विद सम प्रॉब्लम। और उसको कहा गया ही डेवलप्ड एपासिया एंड आफ्टर दैट ही अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड आल्सो। तो उसके बाद ही रिमेन इनसेन फ्रॉम दैट टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई उसको। तो इस केस में डिफेंड उसको इंसैनिटी का डिफेंस दिया गया, क्योंकि ही वाज अनअवेयर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ही डिडंट न्यू दैट व्हाट ही इज डूइंग इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। उसको पता ही नहीं है। वो सोच रहा है कि सर्विंग काली इज द अल्टीमेट जॉब। ही डज नॉट नो दैट ही इज गोइंग टू किल समवन। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनएबल टू डिस्टिंग्विश, और इसको डिफेंस मिलता है। वी देयरफॉर सेट असाइड द कन्विक्शन ऑफ द सेंटेंस। सो कोर्ट ने उसकी कन्विक्शन सेट असाइड कर दिया और एक्यूज को क्या किया, एक्विट कर दिया। पॉइंट 6 में लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ इट गोज। इस केस में शिबो क्योरी में डिफेंस मिल जाता है। मूविंग फर्दर, एक और केस है दया भाई चंग भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या होता है, जो प्लेंटिफ है वो अपने, उसकी शादी हो चुकी होती है 1958 में। उसके और उसकी वाइफ के रिलेशंस कुछ खास नहीं होते हैं, इन डिफरेंसेस होते रहते हैं। 9 अप्रैल 1959 को वो अपनी वाइफ के साथ सोता रहता है। उसके डोर अंदर से बंद रहता है। अराउंड 3 और 4 AM सडनली उसकी वाइफ चिल्लाती है कि वो मारी जा रही है। ये आवाज सुनने के बाद क्या होता है, जो नेबर्स होते हैं वो गेट के पास आ जाते हैं और वो एक्यूज को कहते हैं दरवाजा खोल। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं कि वो औरत मर चुकी है। उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा वॉन्ड्स हैं, और अगर आप और जगह पढ़ेंगे तो कहते हैं कि 44 टाइम्स नाइफ मारा जाता है उसकी बॉडी पे। उसके बाद इस पे ट्रायल चलता है फॉर मर्डर, और ये डिफेंस लगाते हैं कि आई वॉज इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ माई एक्ट। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि 4-5 साल पहले जो डिफेंस दिया जाता है वो कहता है कि सर 4-5 साल पहले क्या था, इनको इंसैनिटी का अटैक आया था और ये पागल हो गए थे। तो कोर्ट इस बात को समझती है कि 4 साल पहले 5 साल पहले क्या हुआ, आप पागल हो गए थे, मेंटल स्टेट खो दिए थे, उसका डिफेंस आपको आज जो काम कर रहे हैं वो उसमें नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप वो क्राइम कर रहे हैं, जो मैंने बेयर एक्ट में भी कहा, एट द टाइम ऑफ कमीशन, जब आप वो क्राइम कर रहे हैं तब क्या आपकी मेंटल स्टेट है। तो मतलब इसमें 2-3 चीजें देखते हैं। हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं कि पहले से आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, सपोर्ट करेगी आपकी आर्ग्यूमेंट को। स्टेट ऑफ माइंड एट प्रेजेंट टाइम, उस समय भी कुछ दिक्कत होनी चाहिए। जब आप वो क्राइम कमिट कर रहे हैं तो उस समय ऐसा लगना चाहिए कि आप पागल हैं, आप अपना कंट्रोल लूज कर चुके हैं। और इवेंट्स इमीडिएटली आफ्टर, क्राइम करने के बाद भी आप किस तरीके से रिएक्ट करें, यह भी बताता है कि आप इंसेन थे या नहीं। जैसे कि आपने एक मर्डर किया और आप बहुत सावधानी से अपना मर्डर वेपन छुपा दे रहे हैं और वहां से भाग जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, तो ये बताएगा कि आपने जो इमीडिएटली जो आपने एक्शन किया वो ये बताता है कि आपको पता था कि ये इवेंट, ये किस तरीके का काम है, ये कॉन्ट्ररी टू लॉ है, इसीलिए तो आप छुप रहे हैं। तो उसमें आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। आपको डिफेंस तभी मिलेगा जब ये सारी बातें कोर्ट ऑब्जर्व करेगी कि जब आपने वो एक्ट करा, वो उसको करने के समय, उसको करने के बाद और उसको करने से पहले, जब ये चीजें लगेंगी कि हाँ आपको प्रॉब्लम थी, है, और शायद उस समय जब आप कर रहे हैं तब भी थी आपको प्रॉब्लम, तब आपको डिफेंस मिलेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। फैक्ट टू फैक्ट जो मैंने आपसे कहा, तो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। ऐसा ही एक केस, सिमिलर केस होता है जिसमें एक बंदा अपनी वाइफ को मार के और वहीं पे, वहां से भागने की कोशिश नहीं करता, वहीं पे खड़ा रहता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, बट कोर्ट ये बात देखती है कि जो उसका मारने का टेक्निक होता है और जो हर चीज यूज करता है, टाइम होता है मारने का, वो सब दिखाता है दैट ही वाज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। जस्ट बिकॉज वो स्पॉट से भागा नहीं तो उसको इंसैनिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये भी कहा कि हो सकता है कि पुलिस टाइम पे आ गई थी इसलिए वो भाग नहीं पाया, तो इसलिए वहां उसको डिफेंस नहीं मिला। तो ये हर चीज हम गौर करते हैं कि उस समय उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। क्या पहले भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको डिल्यूजन था, जैसे कि हमने मैकनॉटन के केस में पढ़ा, बहुत टाइम से वो इस डिल्यूजन में था कि प्राइम मिनिस्टर वांट टू किल हिम। और आपने जब वो मर्डर किया, चोरी करी, जो भी ऑफेंस करा,
उसके बाद आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि अगर आपको पता होगा दैट यू हैव डन सम काइंड ऑफ क्राइम, तो आप उस चीज को छुपाएंगे, और आपको पता ही नहीं है कि वो उसका एक्ट क्या है, नेचर क्या है आपके एक्ट का, और कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तो आप नॉर्मली रहेंगे। बहुत लोग होते हैं ऐसे पीसेज में कट कर देते हैं और चेहरे पे हल्की सी भी डर नहीं आती, हल्का सा भी कपकपी नहीं होती, कोई डर नहीं होता उनके अंदर, और वो इतने ब्रूटल अटैक्स कर देते हैं। तो वहां उनको कहा जाता है कि सर ये तो सोसाइटी में रहने लायक आदमी नहीं है, ही इज नॉट फिट, ही इज मेंटली अनफिट, इस तरीके की चीजें होती हैं। एक एक केस है मुझे याद आता है, चाइना का केस है ये, तो बहुत कंट्रोवर्शियल केस है। देर देर इज अ मैन, उसको बहुत अजीब सी बीमारी है, बीमारी तो गलत शब्द है, अजीब सा उसे नशा है। वो क्या करता है कि कैब्स में वुमेन्स को बिठाता है, ही इज ए कैब ड्राइवर, कैब में वुमेन्स को बिठाता है, उनको अपने रूम पे ले जाता है, उनको किसी तरीके का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक देके उन्हें मार देता है, और उनके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को कट करके और वो अपने रूम्स में रख लेता है, अलग स्टोर कर लेता है कुछ ऐसे केमिकल्स में जिससे वो बॉडी का पार्ट फ्रेश रहे। तो ये एक चाइनीज इंसिडेंट था बहुत ही, और उसके बाद बहुत ज्यादा वुमेन्स का इसने किया, बहुत ही हॉरिफिक था ये। उसके बाद जब ये केस सामने आया तो उससे डिफेंस मिला गया इस बात का कि ही वॉज नॉट मेंटली फिट, और इस तरीके का काम कोई सही आदमी नहीं कर सकता। लेकिन इससे पब्लिक आउटरीच हो गई थी बहुत ज्यादा, लोग बहुत नाखुश थे, क्योंकि इट वॉज वेरी ब्रूटल इन नेचर इस तरीके से करना। और तुम्हें पता है कि टैक्सी तुम लेके जा रहे हो, किसी को उठा रहे हो, फिर तुम मार रहे हो, और फिर बात एकदम चुप, और वो फोटो लेता था जब वो बॉडी के पार्ट्स कट करता था। आई विल शेयर दिस लिंक इन द ग्रुप, क्योंकि वहाँ लॉस थोड़े अलग हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके का मिलता जुलता एक फैक्ट्स था। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं बहुत बार। सो जो मैंने आपको मैकनॉटन टेस्ट बताया, जो मैंने आपको बताया इस बाय दिस हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, कि किस तरीके से दया भाई चंगन भाई ठक्कर में कहा गया कि हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, स्टेट ऑफ माइंड उस समय देखते हैं जब एक्ट हुआ, और एक्ट के बाद क्या उसका एक्शन है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम डिसाइड करते हैं कि वेदर ही विल गेट द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी और नॉट। अब एक क्वेश्चन हम दो तीन केसेस और लेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे। ओके, जैसे कि अशरुद्दीन अहमद का केस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। व्हाट हैपेंस इन दिस केस दैट एक्यूज को सपना आता है कि ही इज कमांडेड फ्रॉम द पैराडाइज कि 5 साल के अपने छोटे बेटे को मार दो, मस्जिद में ले जाके मारो, उसके गले पे चाकू रख के। और ये व्यक्ति वैसा ही करता है, अपने 5 साल के छोटे बच्चे को मस्जिद लेके जाता है और वहां उसे मार देता है। लेटर ऑन वो खुद ही जाके अपनी ये कहानी अपने अंकल को बताता है कि अंकल पता है, मैंने अपने बच्चे, मेरे को सपना आया था, मुझे जन्नत से ऐसा हुक्म मिला था कि मुझे अपने 5 साल छोटे बच्चे को मस्जिद में ले जाके मारना है। तो इसमें उसको बेनिफिट मिला था सेक्शन 84 का, बिकॉज अगर आप ऐसा क्राइम करते और आप पागल होते, पागल नहीं होते, तो ऑब्वियसली आप इस बात को हाइड करते, आप खुद जाके अपने अंकल को तो खुशी खुशी नहीं बताते। तो इसको इस बात का डिफेंस मिला इन अशीरुद्दीन अहमद वर्सेस स्टेट। दया भाई चंगा भाई टक्कर हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो एक अब मैं आपसे एक फैक्ट्स रखता हूँ एक केस का, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, विल ही गेट द डिफेंस और नॉट। ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पढ़िए आप, हेल्ड मैं छुपा देता हूँ। हाँ, फैक्ट्स हैं आपके स्क्रीन पे, आप फैक्ट्स पढ़िए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, आप सोचिए कि वेदर ही विल बी हेल्ड लाइबल और नॉट, क्या उसको इंसैनिटी का डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोग फैक्ट्स पढ़ पा रहे हैं, इतना क्लियरली विजिबल है? चैट में यस लिखिए अगर फैक्ट्स विजिबल है। ओके ठीक है, सो ये फैक्ट्स आर विजिबल, प्लीज रीड इट और फिर मुझे बताइए क्या आपके व्यूज हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। चलिए मैं आपके साथ ही पढ़ देता हूँ फैक्ट्स। द appellant was a railway employee and often lost his temper and has altercation with other clerks in the office. On October 1960, he was found to be suffering from a mental illness as he exhibited symptoms of acute schizophrenia
and showed disorder of thoughts, emotion, and perception of external realities. He was treated for and was cured of this illness by July 1961 when he resumed his duties. On the morning of November 25, he went to office as usual, but as he was late in attendance, he was marked absent. He applied in writing for 1 day's casual leave and returned home. No one noticed any symptoms of any mental disorder at that time. Just after 1 o'clock, he entered his neighbor's house and stabbed and killed a 1.5-year-old girl, and later also stabbed and injured 2 other persons with a knife. He was thereafter arrested and interrogated on the same day when he gave normal and intelligent answers. After his arrest, upon medical examination, the appellant was declared to be lunatic, though not violent, and psychiatric found that he had a relapse of schizophrenia. A plea of insanity was raised as a defense, but his subsequent behavior was taken into consideration by the court, and as he hid the knife, locked himself in house to prevent arrest and attempted to run away from the back door, he also tried to dispense the crowd by throwing brickbats from the roof. So these are the facts of the case. Now I want your answers कि क्या व्यू है आपका. भुवन गोयल says that डिफेंस नहीं मिलेगा, इप्सा कह रही है डिफेंस नहीं मिलेगा, और लोगों के क्या व्यूज हैं. दिस इज जयलाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. तो आप केस लिखने वक्त ये केस भी लिख सकते हैं. इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चन हमेशा केस से देना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आपको याद भी हो जाता है वो. और कोई व्यू? डॉक्टर उनको अभिनंदन शेष मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग सी हैं, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ये कहा जाता है कि वो लुनेटिक है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ ये बातें बताती हैं कि वो भाग जा रहा है, वो ही रन्स अवे. अभिनंदन शेष मिलेगा डिफेंस. और एक दो लोग और आंसर कर दें तो मैं इसका आंसर दे दूं. यस नो कुछ भी शॉर्ट लीजिए, आपका बाहर का लाइसेंस रद्द नहीं होगा. यू कैन टेक सम गेस. हिमालय और नेहा, चंद्रांशु, हर्षिता, एनी वन ऑफ यू? ओके, सो हिमालय कह रहे हैं नहीं मिलेंगे डिफेंस. ओके, तो जो लोग कह रहे हैं डिफेंस नहीं मिलेंगे, चलिए थोड़ा नीचे आते हैं. अच्छा, हर्षिता कह रही है मिलेगा डिफेंस. To establish that the acts were not offences under 84, it must be proved clearly that at the time of commission of the act, the appellant by reason of unsoundness of mind was incapable of knowing that the acts were either morally wrong or contrary to law. अब देखिए यहाँ क्या होता है, उसकी इलनेस क्योर हो जाती है. क्या लिखा है? He was treated and was cured for his illness by July 1961. तब तक ये क्योर हो चुका है. उसके बाद ये अपने ड्यूटी एंड ही रिज्यूम्स हिज ड्यूटी. तो अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने के बाद उसने ऐसा काम किया. और यहां भी क्या कहता है? नो वन नोटिस्ड एनी सिम्टम्स ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, ऑफ लेट ये भी कहा गया है his subsequent behavior was taken into consideration by the court. वो नाइफ छुपा देता है, खुद को बंद कर लेता है अरेस्ट से बचने के लिए, और वो भागने की भी कोशिश करता है. Now, what I wanted to focus by this particular fact is that there is a difference between mental insanity and legal insanity. मेंटल इंसैनिटी तो बहुत छोटी छोटी चीजों में भी डिक्लेयर हो सकता है. कोई आपको प्रॉब्लम है इन माइंड, बट जरूरी नहीं कि वो ऐसी प्रॉब्लम हो जो इतनी ग्रेव हो कि जिससे आप किसी का मर्डर कर दें. छोटी छोटी चीजों पे भी आपको मेंटली इनसेन और अनफिट डिक्लेयर किया जा सकता है. तो मेंटल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी दो डिफरेंट चीजें होती हैं. और वो और लीगल इंसैनिटी में हम ये देखते हैं कि जिस समय उसने एक्ट करा, क्या उस समय उस इंसैनिटी का इतना प्रभाव था उसके ऊपर कि दो एक्ट वो कर रहा था, उसे पता नहीं था कि उसका नेचर क्या है, या उसको पता नहीं था ये कॉन्ट्ररी टू लॉ है या रॉन्ग एक्ट है जो मैं कर रहा हूँ. और इस केस में जब वो ये काम करता है तो ऐसा देखा जा रहा है, इवन इफ मेडिकली उसे कह भी दें कि अगर वो इंसेन है, बट मैंने आपसे क्या कहा, मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी अलग चीजें होती हैं. लीगल इंसैनिटी में हम देखते हैं उस समय आप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्या हाल था. हो सकता है किसी को कभी कभी अटैक्स आता हो, तो जब वो अटैक में नहीं है तब जो वो एक्ट करता है उसके लिए तो वो लाइबल होगा ही. सो क्या हुआ दैट उस समय कोई सिम्टम नहीं थे, वो ऑफिस भी अपना रिज्यूम कर चुका था, मतलब वो नॉर्मली काम कर रहा था, और काम करने के बाद भी उसे पता था कि उसने जो किया वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, इसलिए उसने चाकू छुपा दिया, अरेस्ट से बचने के लिए खुद को घर में बंद कर लिया और उसने भागने की भी कोशिश की.
इसीलिए इस केस में डिफेंस नहीं मिलता है. दिस इज जयलाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. So this was all about insanity. If you have any doubt, you can ask me.